Good afternoon to all of you. As per instruction received by today, the head of department regarding now, we're discussing about the some syllabus. So I was started, your class study itself, but today I will discuss the syllabus. The syllabus mentioned in your course book, and this syllabus is somehow changed because we are also looking for the new techniques or technology and algorithm is involved in Internet of Things. So in the later phase also we can slightly change and add also then some new technology will come because you people will move from third year to final year after this. So yes, we have divided in this entire syllabus in 12 weeks. Okay, so near about 3 months is required, and hopefully we will get the 3 month. So okay, so no issue. Now I will proceed for today class. So as you know, the your subject name is Internet of Things, right? And that is IoT. And in week one, the current week, and today itself, I will not start the class from I know Thursday onwards. I will start the class today, right? And I already started yesterday. So week one is the introduction to IoT. Means we will see the evolution of RFID to IoT, how the journey was completed from RFID to IoT, and what next. Okay, IoT in real time deployment. Yesterday, I was initiated this topic. IoT layer architecture. IoT layer architecture is really important. Like OSI model, you all people's known the concept of the seven layer concept. So in this week one, we will see the IoT layer architecture and sensing. But week one is not possible to complete all these. But I will try my best to complete it. But they maybe moved week one to week two might be okay. So no issue. And after the IoT layer architecture, sensing and I think you all basically know the concept of actuator and everything. But we will discuss again about the actuator. What are the role of actuator, actuations? Basics of networking. Basics of networking. You already studied one subject, component networks. But basic of networking in respect of IoT, I will discuss. Right. Okay, in the week two, basics of networking and communication protocols. This is really important, right? Protocol, the rule of how you can study the protocols and how you can develop your protocols. So to development is somehow for you students in third year, so somehow tough, but not so much complex. You can also do some contributions. In week three, we will do the communication protocol related to sensor network. That means mainly related to wireless sensor networks and very close to Internet of Things. Then week four, machine to machine communications. Machine to machine communications, all are knowing is a emerging field. Machine to machine learning. So I will included this machine to machine communications in your syllabus, and this is the week four. And in week five, we will incorporated the interoperability in IoT. That means it's totally based on the practical knowledge. We will. I think you all are now aware about the Arduino programming, integration of sensor, actuators, and Arduino. And might be some you people don't know the Raspberry Pi. So we will focus on Raspberry Pi slightly more as compared to Arduino programming, because as a third year you are now well equipped with this Arduino. I think as for the programming concept, maybe you know somehow better than me. But what are the concept, why we are doing, and what can do as a proposal? I will try to help out. Okay, and then after this Python is really fantastic. You can develop your own PC,
using your Arduino, Raspberry Pi, and can do not do much gaming like that. But yes, for general purpose, you can. It is really good platform for the future scenario. And after that, we will also do the some interface with the video capturing, image capturing using Raspberry Pi. That is really fantastic. You will enjoy with a Raspberry Pi with interface with the GPS module and Pi camera, right? So Pi camera is 2 megapixels is resolutions, and you can use as a webcam and different type of applications. So it's really fantastic. So later on, after this Raspberry Pi, we will do the software-defined networking, and this is in my on my channel is already in available. You can learn about the some SDN networks, and sensor on cloud is also available in my channel. Uh, so SDN for IoT, data handling, and analytics, cloud computing. I will teach cloud computing in a different manner so that you can understood the basically why cloud computing is appeared. This lecture is also available in my channel. So week 9, cloud computing and sensor cloud is really important, really important for you pupils, and those are really wants to do the some job in Intel and Orange and different networking companies. This is really important, right? So cloud computing and sensor cloud, those are really interested in networking. Please concentrate on this. After that, that I will also give the real time, fog computing, smart cities and smart homes. So let us assume that I will give the one task. You will propose some algorithm so that your city will be smart. So I will give the task. If you on the basis of your proposal, how you can distribute the dustbin in the different center. अभी आप देखते हो कि कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पे है, कोई monitoring नहीं है, but you can propose the कुछ बच्चे ने बनाया था last year. So this is really a really good concept, how you can monitor and how the transportation system can be interfaced with this um, this garbage collections or डस्टबिन मॉनिटरिंग इज really important. यदि आप में से कोई, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, उसी तरह आप में से यदि कोई ये अर्थक्वेक का कि कोई आप में से कोई एक अच्छे जो प्रोजेक्ट जानते हो करना इज रियली गुड वन. इट्स द सेम, या लाइक जम्मू में आप हो या जिस सिटी में हो आप, यू कैन प्रपोज एन एल्गोरिथम फॉर स्मार्ट डस्टबिन मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग IoT. इज really good. If you can do, then it's really good. Okay. Then week 11, connected vehicles, that is VANET network and smart grid, industrial IoT, and सबसे important है unmanned aerial vehicle UAV. So UAV is available in my lab, and I think you people, 2-3 students have also done some work, but कुछ उसका आप लोगों ने थर्ड ईयर वाले बच्चों को याद है, जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे, then I was given to do the some work. But UAV is really important. How the UAV is monitoring defense sector. आपने उड़ी मूवी देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि what are the role or what are the impact of UAV in defense sector. At the same time, you can use as a vertical as well as the horizontal. आज तक जितने भी ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो रही है या कहीं पे जुलूस निकल रहा है उसको मॉनिटर करना है, बहुत सारा एप्लीकेशन है यूएवी का. यूएवी से आप आजकल ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, आजकल वाईफाई दे रहे हैं, कहीं कहीं यदि डिजास्टर हो जाए कहीं पे तो आप यूएवी के थ्रू आप इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हैं. So this is the the classic of the UAV, unmanned aerial vehicles. So it is really fantastic phenomena. Okay, and last one is, last but not the least, I will give some project on the basis of IoT to all the groups. They can be based on healthcare, agriculture, and different types of actual monitoring system. Okay, so hopefully आपको सिलेबस पता चल गया होगा. There is some variations in week 1, week 2, बट ठीक है, हमें कुछ टारगेट बना के देना पड़ता है कि कर पाएंगे. बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं जितना पढ़ाऊँ उतना आप उसको कलेक्ट कर पाए. दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. ये नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाता जाऊँ और आप सिलेबस खत्म हो जाए. दैट इज
नॉट माई नेचर, एंड मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आपको। तो होपफुली ऋषिता, हैव यू गॉन थ्रू द सिलेबस बेटू? मैंने जो बताया सिलेबस दिख गया बेटू पूरा? ऋषिता प्लीज, यदि आप बोल पाए तो प्लीज बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मैं सिलेबस देख लिया आपने? आई Yes, विल sir. सर्कुलेट दिस सिलेबस टुडे, टुडे इटसेल्फ। तो Okay, sir. ये पूरा सिलेबस है आपका पूरे सेमेस्टर का। Then after that, we can do, so just a minute, I'm switching off the going to. Okay, so no issue. Hopefully, you peoples are able to incorporate the syllabus of this IoT, and यदि थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो we will do, fantastic way. Okay, so यहाँ पे किसी को डाउट हो, सिलेबस में कोई पूछना हो तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ तक सोमेश, सोमेश सही है बेटू? यहाँ तक सिलेबस सही है? सिलेबस समझ में आ गया बेटू? Yes, sir. So this is the अब उसमें सिलेबस में मैंने एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, जिसमें लिखा हुआ था IoT रियल टाइम एप्लीकेशंस, राइट? तो रियल टाइम एप्लीकेशंस में ऐसे यदि आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर हो, तो बात की बात है, सिंपल यही है कि आप ये एरिया है, यहाँ पे सेंसर डिप्लॉयड है, सेंसर डिप्लॉयड होके सेंस करके, सेंस किया आपने डाटा, सेंस्ड, फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे, राइट? प्रोसेस करेंगे तो कोई फेनोमेना होगा, मे बी यहाँ से भी डाटा आ रहा है, यहाँ से भी डाटा आ रहा है, तो नो डाउट एक कुछ सिलेक्शंस करेंगे, जिसको क्लस्टर हेड से सेलेक्ट किया था। उसके बाद आप डिफरेंट नेटवर्क में जोड़ेंगे, दैट इज द गेटवे लिया था हमने। गेटवे फिर सर्वर पे जुड़ा रहेगा, प्रॉक्सी सर्वर, राइट? और ये सर्वर जो है वो इंटरनेट से जुड़ा रहता है, राइट? तो यही अंतर है बेटू। सिंपल यदि आप बात करो ना, तो एक बहुत बड़ी अंतर है। कोई पूछा जाए कि सिंपल IoT और WSN नेटवर्क में क्या अंतर था, राइट? वायरलेस सेंसर नेटवर्क भी तो ऐसा ही करता था, व्हाट दे डू, सेंस एंड एडहॉक नेटवर्क की तरह। एडहॉक नेटवर्क में आप तो सबसे पहले क्वेश्चंस बनता है कि आपने वायरलेस सेंसर नेटवर्क पढ़ा है थोड़ा कभी? अवंतिका, आपने बेटा वायरलेस सेंसर नेटवर्क पढ़ा है? नो सर। सो वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या करता था बेटा? यदि सेंसर 1 है, सेंसर 2, सेंसर 3, सेंसर 4 एंड सेंसर 5, राइट? तो दे आर कम्युनिकेटिंग, राइट? लेट अस अज्यूम दैट कि ये क्लस्टर्ड हेड है, कम्युनिकेट करके, और उसमें ना मतलब इंटरनेट पे प्रोसेस नहीं करते थे हम, राइट? वहीं पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिकॉन्फ़िगरेशंस करके वो अपना डाटा दिया जाता था। बट वहां पे एनालिसिस जो होती थी वो मतलब क्लाउड पे नहीं होता था ना, एक लोकल 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 एरिया में, लोकल लैंड में ही उसको कंप्यूट करते थे। तो दैट इज ना, डाटा इज नॉट अवेलेबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। यही डिफरेंस है सिर्फ कि कंप्यूटिंग का जो है ना, कंप्यूटिंग यदि मान लो कि सारा कंप्यूटिंग मैं सेंसर पे ही करूं, बट सेंस भी करूं और कंप्यूट भी करूं, तो क्या होगा अमित का, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? यदि कोई सेंसर सेंस भी करे, प्रोसेस भी करे, एनालिसिस भी करे, तो इसका क्या प्रॉब्लम होगा बेटू? सर ये तो शायद फिजिबल नहीं होगा ना सर, वो सेंस भी करे कंप्यूट भी था ना पहले तो सेंसर, वायरलेस सेंसर नेटवर्क वही बता रहा हूँ सर। कि वो वो सेंस की ज्यादा सर, वो शायद ज्यादा डेटा नहीं कर पाएगा, उसकी बड़ी लिमिटेड यूज हो जाएगा। सबसे पहली बात होती है कि लाइफ टाइम, राइट? तो इसलिए आपको सुना होगा कि लाइफ टाइम जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क का होता था ना, वो बहुत कम होता था। क्या होगा कि आप ज्यादा सब कुछ काम करवाएंगे एक ही बंदे से, तो क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी, है ना? और एनर्जी यदि कंज्यूम होगी तो उसकी लाइफ टाइम कम होती जाएगी। मानते हो ना इस बात को? तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले कि हाउ यू कैन डिफाइन द एडहॉक नेटवर्क। सबसे पहले तो ये बताओ कि अच्छा IoT वायरलेस है कि वायर्ड है, पहले ये क्लियर है ना मृणालिनी? IoT, Internet of Things, is a wired network or wireless? मिलानी आवाज आ रही है तो प्लीज बोलते जाइए, अदरवाइज ना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऋषिता अगर नागपाल, ऋषिता नागपाल। Yes, sir. क्या है ये? So wireless. वायरलेस। सो वायरलेस एंड वायर्ड में क्या अंतर है?
सर वायर्स में हम वायर्स यूज करते हैं, वायरलेस में हम थ्रू एयर हमारा चैनल होता है, हम्म। पर वायर्स में तो हम वायर्स यूज करते हैं ना अलग अलग तरह की अपनी रिक्वायरमेंट। अच्छा, तो वायरलेस और वायर्ड में यही अंतर होता है कि कुछ और अंतर होता है? वायर्ड एंड वायरलेस में क्या अंतर था, बता सकते हो कुछ? कौन बताएगा मुझे वायर्ड एंड वायरलेस में अंतर? इधर वायरलेस है, इधर वायर्ड है, दोनों में अंतर क्या होता है? और So, आईओटी और डब्ल्यूएसएन जो है एडहॉक नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों पे थोड़ा सा मुझे बताइए क्या है, क्या डिफरेंस होता है? सर अटेनुएशन जो वायरलेस में ज्यादा होगी क्योंकि वो स्प्रेड हो जाएगा सिग्नल, जबकि वायर्ड है तो हम एक चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, केबल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अलॉन्ग ही करेगा, और फास्ट अटेनुएशन कम होगी तो फास्टर मूवमेंट होगा। तो अटेनुएशन कम होगा, वेरी गुड, ओके। दूसरा रितिका बताओ कि दूसरा वायरलेस में क्या डिफरेंस है? अटेनुएशन इज ओके, सेकंड अटेनुएशन इज ओके, वायर्ड में आपका अटेनुएशन ज्यादा होगा, वायरलेस में सॉरी उल्टा लिखा दिया, एक मिनट। सो क्या होता है, वायरलेस में अटेनुएशन ज्यादा होता है, राइट, जैसा उसने बताया, यस। सो वायरलेस में ज्यादा और वायर्ड में कम, ओके। बिकॉज उसने क्या बताया कि यहाँ पे क्या होता है, डेडिकेटेड चैनल होता है और यहाँ पे ओपन है ना, ओपन एयर चैनल है, राइट, जो कल मैंने बताया था, ओके। सो दूसरा बताइए रितिका जी, दूसरा डिफरेंस क्या आता है वायर्ड एंड वायरलेस में? सर यही डिफरेंस होता है कि वायर्ड में हमें एक प्रॉपर चैनल वगैरह बनाना पड़ता है, मतलब प्रॉपर कनेक्शन वगैरह चाहिए होता है। और वायरलेस में प्रॉपर कनेक्शन नहीं चाहिए होता है ना? चाहिए होता है, लेकिन उसमें ऐसे मतलब कनेक्ट नहीं करते ना एक दूसरे को वायर्स के थ्रू। अच्छा, ये होता है डिफरेंस, ये बताएंगे आप डिफरेंस एज इंजीनियर? कौन बताएगा भाई? अनुदीप कॉल, वायर्ड एंड वायरलेस में क्या डिफरेंस है बेटू? वायरलेस एंड वायर्ड में क्या डिफरेंस है बेटू? कोई नहीं ना, क्या फर्क है यार, मतलब यू आर इन थर्ड ईयर, यू पीपल्स आर थर्ड ईयर, मैं मतलब मैं तो अभी आईओटी पढ़ाने के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग को ये नहीं मालूम कि वायर्ड एंड वायरलेस में क्या डिफरेंस है, तो कैसे कोई बताएगा बेटा? रवि सिंह यादव, रोल नंबर 46। यस सर। हाँ, क्या होता है डिफरेंस? सर एक मेन डिफरेंस सर रीचेबिलिटी का हो सकता है सर, द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर। वायरलेस में सर हम काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर सकते हैं सर, बट वायर्ड में सर एक लोकल एरिया में कर सकते हैं सर। अच्छा, वायर्ड में लोकल एरिया में कर सकते हैं, यानी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं। यस सर। पता है तुमको जो चैनल का डिफरेंस है। सो इंटरनेट जो यूज कर रहे हो ना तुम, वो ऑप्टिकल फाइबर पे है। ऑप्टिकल फाइबर जो तुम्हारा लगा हुआ है ना, वो मिनिमम, मतलब इंडिया में बोल रहा हूँ मैं, मतलब 20,000 किलोमीटर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। सर वो तो बेसिकली हो गया सर, जैसे फॉर एग्जांपल सर एक बेसिक पर्पस के लिए सर हमने लगा रखा ऑप्टिकल फाइबर सर, बट जैसे कि सर फॉर एग्जांपल सर अब ये बस एक पर्टिकुलर सर इंटरनेट पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है सर, बट फॉर एग्जांपल सर टीवी ट्रांसमिशन हो गया, रेडियो हो गया सर, एफएम हो गया, तो सर उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं कर सकते सर। सो बोलो नहीं, फिर ये ऐसा बोलो ना कि ब्रॉडकास्ट नेचर में, ब्रॉडकास्टिंग नेचर में वायरलेस का रेंज ज्यादा हो सकता है और वायर्ड का कम हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ डिफरेंस ना बेटू, है ना? तो रेंज तो दोनों में है, रेंज तो वायर्ड में ही ज्यादा है। वायरलेस में तो यदि बहुत ज्यादा आप ज्यादा जाएंगे तो अटेनुएशन इतना ज्यादा है कि आप, जैसे बेस स्टेशन का भी है, एक लिमिट है बेटू, है ना, एक लिमिट के बाद आप नहीं कर पाएंगे। वायरलेस सर नॉइस से ज्यादा प्रोन होता है सर, अनबाउंडेड मीडिया में, तो सर वॉइस के ज्यादा प्रोन होगा। तो वायरलेस में नॉइज का इंपैक्ट लिखते जाइएगा, जो बता डिस्कस कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा हूँ। सो नॉइज, यस, वेरी गुड बेटा। सो एक नॉइज में जो इम्पैक्ट जो है वायरलेस में ज्यादा होगा और वायर्ड में नहीं होगा, वेरी गुड, ये सही है। और कोई कुछ और बोल रहा था, कोई एक अच्छा बच्चा कुछ बोल रहा था। जो सिक्योरिटी होगी वो जो केबल में ज्यादा होगी और बाकी में सिक्योर एंड दिस इज लेस सिक्योर, यस।
कोई नहीं, टेक्निकल बात कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ डिले सर स्पीड ज्यादा होगी वायर्ड में। स्पीड की ज्यादा होगी। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। तो कोई भी पता है आपको, कोई ब्लैक बॉक्स जानते हो? ब्लैक बॉक्स में जैसा इनपुट डालते हैं उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो आउटपुट देता है, ये तो मानते हैं आप लोग सब कोई, है ना? सो और ये 54 ही क्यों है, मुझे पहचानते नहीं हो आप लोग, है ना? फिर मैं एग्जाम भी नहीं देने दूंगा। ओके, सो हियर आउटपुट को हमेशा y लिखते हैं बेटा, मालूम है आप लोग को, और इनपुट को x लिखते हैं, है ना? और ये चैनल है। चैनल मतलब मैंने कल बताया था, चैनल मतलब चैनल कोएफिशिएंट, चैनल है ये, चैनल रिस्पॉन्स। सो एज अ जनरल y इक्वल टू क्या होता है बेटा, hx, मतलब hx प्लस नॉइज, मानते हो? लिख लीजिए, एज अ जनरल इक्वेशन ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन इज y इक्वल टू hx प्लस n, n इज मतलब नॉइज, y मतलब आउटपुट, और ये टाइम के साथ लिखना चाहते हो तो y t इक्वल टू लिख सकते हो, h x इज द इनपुट और h इज द चैनल, राइट? दिस इज इक्वेशन r। सबसे पहले लिख लीजिए y इक्वल टू hx प्लस n, राइट? तो यदि आपका जैसा ये ब्लैक बॉक्स में जैसा भी रिस्पॉन्स होगा वैसा आउटपुट देगा। तो एक ने बहुत अच्छा बात बोला कि नॉइज का जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता है वायर्ड में, एकदम सही, वेरी गुड। बट ऐसा नहीं होता, होता है इम्पैक्ट। जैसे थर्मल नॉइज आपने सुना होगा, यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? थर्मल नॉइज KTB करके नाम सुना होगा, पढ़ा है आपने किसी ने नॉइज के बारे में? जिसने बोला था बेटा थोड़ा अनम्यूट हो जाना बेटू। यस सर। हाँ, तो नाम सुना है बेटू, थर्मल नॉइज के बारे में थोड़ा नाम सुना है बेटू? यस सर। हाँ, तो क्या होता है, नॉइज तो कम होगा, एकदम सही बोल रहे हो, जो चैनल का नॉइज है वो कम होगा, बट जो वायर उसमें लगे हुए हैं उसमें भी थर्मल नॉइज आ सकता है ना? फ्लिकर भी आ सकता है, हाँ फ्लिकर भी आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है आजकल जो वायर जाती है ना फाइबर, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वायर भी जाती है, तो कभी कभी EMI लॉस भी होते हैं, तो थोड़ा लॉस होता है। अब मैं जिस के लिए आप सबको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, y इक्वल टू hx प्लस n, so h is channel coefficient, चैनल कोएफिशिएंट, राइट? तो चैनल कोएफिशिएंट मतलब क्या, यदि मेरा चैनल चैनल कोएफिशिएंट से ही निकलता है, h स्क्वायर कर दोगे तो इसको बोलते हैं चैनल गेन। ये नहीं भी मालूम रहेगा चलेगा, चैनल कोएफिशिएंट के बारे में देखो। यदि मेरा जो नॉइज बोल रहे थे बेटू, अनम्यूट कीजिएगा, तो आपको लेके चलता हूँ। यदि मेरा y और h मेरा बेटा वैलिड है x प्लस n, तो y जो है हमेशा आउटपुट क्या होगा बेटू, वैलिड होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, मानते हैं इस बात को? यदि h वैलिड, क्योंकि इनपुट तो दोनों में है ना? तो अब ये बताओ कि h जो है चैनल कोएफिशिएंट है, चैनल कोएफिशिएंट में बेटू मतलब क्या, h मतलब चैनल कोएफिशिएंट मतलब a, और यहाँ पे कोई बेस स्टेशन है, राइट? ये कोई बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन देखा होगा आपने अपने यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पे लगा हुआ है। ए आपका जो हॉस्टल है वहां पे आप कोई डिवाइस लेके बैठे हुए हैं, तो ये डॉट 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 आएगा। और दूसरा एक ऐसा भी है, आप लैब में काम कर रहे हैं तो एक तो रिसीव कर रहे हैं अपने मोबाइल पे अपलिंक एंड डाउनलिंक, सॉरी हमेशा याद रखना लाइफ में रिप्रेजेंटेशन रियली इंपॉर्टेंट। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटू, यहाँ पे डॉट डॉट ही होगा, आप दूसरा किस नहीं लगा सकते, एक अपलिंक एक डाउनलिंक, तो एक है डाउनलिंक। तो ये बेस स्टेशन से यदि यूजर की तरफ ये जो मोबाइल आपका ये है मोबाइल, यदि उसके तरफ यदि लिंक आ रहा है ऐसे वाला, इसको बोलते हैं डाउनलिंक, और आप जो रिस्पॉन्स करते हैं उसको बोलते हैं अपलिंक। ठीक है बेटू यहां तक? नाउ सेम टाइम पे नेटवर्क सेंटर से एक वायर आया हुआ है, नेटवर्क सेंटर जो अपना कंप्यूटर सेंटर है, और आपके लैब में आप वही मोबाइल पे हैं, तो कभी कभी आप वाईफाई यूज करते हैं, राइट? तो यहां तक तो वायर्ड होता है वो, और फिर वायरलेसली करते हैं कभी कभी। लेट अस दैट आपका सिस्टम है, सिस्टम तो डायरेक्टली आप इसको वायर्ड। तो वायर्ड नेटवर्क को हमेशा याद रखना, रिमेंबर लाइफ में हमेशा वायर्ड नेटवर्क, हाउ वी कैन जज दैट कि ये वायर्ड नेटवर्क है कि वायरलेस है, तो वायर्ड नेटवर्क इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अ सॉलिड लाइन, सॉलिड। और वायरलेस को कैसे करेंगे बेटू, बताइए सबको, क्या करेंगे? डॉटेड, तो लिख लीजिए इज द डॉटेड। तो कभी कभी हमें ये भी नहीं पता होता कि रिप्रेजेंटेशंस क्या है,
ओके, वेरी गुड। यहाँ पे डॉटेड है यानी वेरिएशंस है, वेरिएशंस। क्यों? क्योंकि इस बीच स्टेशन में मे बी बेटा क्या आ सकता है, कोई ट्री आ सकता है, कोई बिल्डिंग रिफ्लेक्ट करके इसको डिस्टर्ब कर सकती है नहीं कर सकती है बेटो? मानते हैं इस बात को? जयदीप सही बोल रहे हो? जयदीप प्लीज। यस सर। लेकिन बेटा यदि आपका डायरेक्टली वायर्ड है, इसमें पेड़ भी हो, कुछ भी हो, तो अंदर में है, गिर भी जाएगा पेड़ या कोई बिल्डिंग भी गिर जाएगी तो भी ऑप्टिकल फाइबर से फर्क पड़ेगा। बट लेकिन इसमें कोई भी आप एटोनेशन नहीं ला पाएंगे, नॉइज नहीं डाल पाएंगे एक्सटर्नल। मानते हैं इस बात को? यस सर। तो दिस इज द डिफरेंस। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन वेरिएशन मतलब एच वेरीड, लो एंड हाई, इसको लिख लीजिए वेरीड। और इसमें क्या होगा बेटा जयदीप, एच क्या होगा सर? चैनल का ऑप्शन क्या होगा? कांस्टेंट। यहाँ पे चैनल का ऑप्शन वेरीड, वायरलेस है ना, तो कोई भी ट्रेन आ गया, कोई बारिश आ गई, कभी कुछ हो गया तो आपको दिक्कत होगा। जयदीप कभी क्रिकेट देखते हो? नो सर, फुटबॉल। क्रिकेट नहीं देखते हो? कौन क्रिकेट देखता है भाई? वो अनम्यूट कर जाओ यार, तुम तो मतलब इस टाइम के मतलब सबसे। फुटबॉल खेलता हूँ। ओके करण, आप क्रिकेट देखते हो? करण शर्मा सर कभी कभी कौन क्रिकेट देखता है यार जो टीवी पे कभी देखता हो? हार्दिक। यस सर। सोमेश सर। हाँ सोमेश, क्रिकेट देखते हो तो सोमेश एक चीज ऑब्जर्व करना, बहुत जो देख रहे हो उसी से मैं बता सकता हूँ कि आप टीवी पे जब मैच देखते रहते हो ना, और बाहर रेन स्टार्ट हो गई, राइट? हो गई। यस सर। एक बॉलर जो बॉलिंग करता रहता है ऐसे रुक जाता है ना, ऐसे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है क्योंकि बारिश बाहर है। देखा है या? चलो ठीक है ना, टीवी में क्रिकेट देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, यदि बाहर बारिश होने लगती है तो क्या होता है बेटू? क्लियर बताइए क्या होता है? नो सिग्नल आ जाता है। नो सिग्नल, वेरी गुड, नो सिग्नल, वेरी गुड, नो सिग्नल। क्यों होता है ऐसा नो सिग्नल? हल्का सा बफरिंग टाइप। हाँ, फ्लिक करता रहता है। कभी सोचा है आपने कि क्यों होता है ऐसा? सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो पाता ना। हाँ, क्यों नहीं कनेक्ट हो जाता? वेरी गुड, कनेक्शंस में प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है कनेक्शन में प्रॉब्लम? आपको मम्मी पूछी, यदि ये पापा पूछे एज इंजीनियर बताओ कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कि बारिश हो रही है तो ये सिग्नल रुक जाता है, तो आप बोलोगे एटोनेशन हो गया। बट एटोनेशन हुआ कैसे? तो करण देखना, आपको पता है कि आपका टीवी जो सिग्नल रिसीव कर रहा है वो किस टेक्नोलॉजी से रिसीव कर रहा है बेटू? करण, आपका जो टीवी लगा हुआ है घर में वो किस टेक्नोलॉजी से आप देखते हो? डीटीएच, टाटा स्काई या जो भी एयरटेल, जो भी घर में रखा है ना, कि नहीं है? करण है घर में? हाँ सर है। हाँ, तो ये कौन सा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? गौरव, कौन सा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है टेलीविजन हम देखते हैं जो डीटीएच या टाटा स्काई? गौरव झा, हाँ कौन सा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? सर VHF बता देते हैं सर। VHF नहीं, वो VHF BSD, वो तो BSB बता रहा था बैंड के बारे में। कौन सा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है आपका टेलीविजन? कभी सोचा है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेटा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर ऊपर लगा हुआ है, टीवी वहां से सिग्नल ले रहा है थ्रू डीटीएच का, दिखा है वो एंटीना घर में लगा हुआ है? यस सर। तो यहां से जा रहा है और यहां से रिसीव हो रहा है, ये रिक्वेस्ट भेजता है और ये यहां से आता है, ऊपर से नीचे डाउनलिंक, ऊपर से नीचे अपलिंक। और पता है ये अपलिंक डाउनलिंक किस किलोहर्ट्ज पर करता है? 3 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज। अब बताओ गौरव, यदि 6 गीगाहर्ट्ज का हमारा फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी C/F, लैम्डा इक्वल टू C/F निकालेंगे। तो जब C/F यदि 3 × 10⁸ और यहाँ पे निकालोगे 6 × 10⁹, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.05। हाँ, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, है ना? और मिलीमीटर की तरह छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो बताओ बाहर यदि गौरव बारिश आ गई और सिग्नल जो आ रहा है वो बहुत छोटा है, इंफॉर्मेशन सिग्नल इज वेरी स्मॉल, और बाहर बारिश चल रही हो तो क्या होगा बेटू?
सर वो बारिश के उस इंटरफेरेंस की वजह से सर वो और वीक हो जाएगा वो और क्या हम होता रिसीव है, नहीं जो कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो बारिश के बूंदे में फंस जाता है और उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि छोटा है और बारिश की बूंदे थोड़ी बड़ी है, बहुत तेज बारिश जब हो रही है वो तो उसके अंदर चला जाएगा। तो क्या आपका जो एंटीना लगा हुआ है बाहर रिसीव कर पाएगा सिग्नल? नो सर। इसलिए नहीं दिखाई देती है। हार्दिक, समझ में आया तू? यस सर। जदीप, क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो, थोड़ा हाँ, समझ नहीं आया। जदीप देखो, आपका मान लो कि आपके घर में टाटा स्काई तो लगा हुआ है या कोई भी मतलब एयरटेल या कुछ भी Yes, लगा sir. होगा, एंटीना लगा हुआ है। और ये एंटीना जो है बेटू किससे रिसीव कर रहा है बेटा? यहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट है ना, यहाँ सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब ट्रांसपॉन्डर नाम सुना होगा, है ना, हर कंपनी की एक खरीदते हैं गवर्नमेंट से कि मेरा भी लॉन्च कर दीजिए ट्रांसपॉन्डर, है ना। Yes, sir. और तो ये मान लो कि एयरटेल वाले का है या टाटा स्काई का है। अब ये क्या करते हैं, जब ये मूव करते रहते हैं अर्थ के ना रोटेशन के बेसिस, पता है ना, ये तो पता है ना। Yes, sir. Yes. जिस स्पीड से अर्थ घूमेगी उसी स्पीड से ये भी घूमता रहेगा और लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट बनाया रहेगा। लाइन ऑफ साइट कभी पढ़ाऊंगा, लाइन ऑफ साइट कैसे क्या होता है। बट यहाँ पे एक चीज देखना बेटू कि अभी क्या होगा बेटू, ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि टीवी स्टार्ट करते हो तो पहले स्टार्ट होने में टाइम लेता है, देखा होगा, है ना। Yes, तो sir. इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। और यहाँ पे फिर बेटू यहाँ पे सेटअप हो जाता है। तो यहाँ से ये सेटअप हो गया। वायरलेस है तो हमेशा मेरे से गलती हो गया, वायरलेस है तो कैसे लिखेंगे हमेशा? डॉटेड डॉटेड। तो आपको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि सर आपने तो नहीं लिखा, मैं हटा देता हूँ। तो कभी कभी गलती हो जाती है। सो यहाँ पे ये जो एंटीना है इसके साथ अब ये कम्युनिकेट करेगा। बेटा जो क्वेश्चन पूछा है तो वही उसी तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, तो आराम से देखना। जब रिक्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं अप लिंक, और जब रिक्वेस्ट पूरा हो जाता है उसको बोलते हैं डाउन लिंक। ये बताऊंगा कभी कैसे होता है पूरा कम्युनिकेशन, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, पॉजिटिव प्लेसमेंट एंड फिर ट्रांसफर। तो वो चीजें मैं बताऊंगा कभी। अभी यहाँ ठीक है बेटू, यहाँ तक? Yes, sir. Yes, अब sir. ये अभी क्या हो गया, बीच में वायर, ये पूरा वायर है, वायरलेस है, वायरलेस, ठीक है। अब वायरलेस में अभी बाहर, घर के बाहर आपकी बहुत बारिश आ गई तो रेन ड्रॉप गिर रहा है बेटू, गिर रहा है ना। और ये ट्रांसपोंडर है यहाँ पे सिग्नल भेज रहा है, और ये एंटीना यहाँ पे है बेटू, एंटीना यहाँ पे इंस्टॉल है। तो ये यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा बेटा? क्योंकि लेमडा जो है वो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, C/F, और फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज होने के कारण, फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा होने के कारण लेमडा क्या हो जाएगा बेटू, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे लेमडा कितना होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। छोटा होता जाएगा। और बारिश के बूंदे लेमडा से बड़ा, तो रास्ते में बारिश है चल रही है और उधर से सिग्नल आ रहा है, लेकिन सिग्नल छोटा, तो क्या करोगे, क्या होगा? तो सर बोल रहा था अगर बारिश होगा तो उस समय अगर लैम्बडा बड़ा कर देते हैं तो कैसे सिग्नल बड़ा आएगा? कर दूं? क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का क्या है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है ना बेटू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम। अगर उस हिसाब से अगर मतलब ऐसे मतलब वेरी करे फ्रीक्वेंसी तो आ सकता है क्या? मतलब अगर हाँ, लैम्बडा ये जो तुम बोल रहे हो शुभजीत, दैट इज द रिसर्च, है ना, हाउ यू कैन कंट्रोल, है ना। ओके सर, दैट इज द रिसर्च पार्ट कि हाउ एडेप्टिवली दे कैन चेंज देयर साइज, है ना। यस सर। बट अभी क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। यस, दैट इज गुड शुभजीत। सो दिस इज द रिसर्च, इसको रिसर्च बोलते हैं कि आप सिग्नल, अच्छा शुभजीत रिसीव तो नहीं कर पा रहे हो ना, ये मैं पूछ रहा हूँ, नहीं कर पाते हो ना जब बारिश होती है? ना सर, नहीं कर पाते। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये बता पाओगे आप किसी को? हाँ सर, वो छोटा हो जाता है उसका ये सिग्नल का साइज, इन्फॉर्मेशन साइज छोटा हो जाता है, और अपना जो बारिश की बूंदे हैं वो बड़ा है तो उसे फंस जाता है। सही है जयदीप, यहाँ तक ठीक है बेटू? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द अपलिंक एंड डाउनलिंक भी समझ में आ गया होगा आपको कि क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चैनल क्या था, कभी आप पूरा रिसीव कर रहे हो, आराम से क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट आराम से चल रहा है, देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी रुक जा रहा है, स्टॉप हो रहा है, सिग्नल नॉट रिसीव्ड। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज चैनल इज वैलिड, चैनल कोएफिशिएंट इज वैलिड। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि H इज वैलिड कब, कौन सा कम्युनिकेशन में? वायरलेस। क्लियर बेबू, बेटू एकदम सही है यहां तक? अब देखो आगे, अब हम लिखेंगे y इक्वल, फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं बेटू, y इक्वल टू hx प्लस नॉइज, जनरल इक्वेशन। इफ y इक्वल टू h मतलब x प्लस n वेयर h इक्वल टू 1, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है y इक्वल टू वैलिड, वैलिड के लिए साइन ऐसा कर देता हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। तो
मेरा क्वेश्चन है, हाँ, हार्दिक गुप्ता, ये एस और ये टी, बताइए बेटू, एस एस किसके लिए है, कौन सा, किसका इक्वेशन है जब h इक्वल टू 1 है? हार्दिक, सर नहीं पता। नहीं पता? यानी पूरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा। तुम क्या कर रहे थे हार्दिक अभी? सर यही देख रहा था। अच्छा हार्दिक, आप अनम्यूट रहना, ठीक है? यस सर। तो मान लो कि कोई सिस्टम है बेटू, है ना, और यस सर। कोई भी सिस्टम में कुछ भी करोगे, मान लो कि तुमने कोई दुकान पे जाते हो, ठीक है, दुकान एक सिस्टम है, और सर। उसको 10 रुपया देते हो, ठीक है, और एक चिप्स देता है, चिप्स खरीद के 10 रुपए का चिप्स खरीदते हो, तो बताओ जो तुमने 10 रुपया दिया वो क्या है, चिप्स जो उसने दिया वो क्या है, और दुकान क्या है, बताइए। सर दुकान एक टाइप का चैनल हो गया। चैनल हो गया, मैं लिख देता हूँ, आप जो बोलेंगे वही लिखूंगा मैं, चैनल। वेरी गुड। और आपने जो पैसा दिया वो क्या है, आउटपुट है या इनपुट है? इनपुट। इनपुट, तो इनपुट। और जो वापस आपको रिस्पांस दिया वो क्या है? चिप्स। चिप्स मतलब वो क्या क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट। मानते हैं इस बात को? यस सर। ठीक है। अब इसी चीज को जो आपने पैसा 10 रुपीज दिया उसको मैंने एक्स लिख सकता हूं, लिख दूं? यस यस सर। चैनल जो दुकान है वो वैलिड है, क्यों वैलिड है बेटा? अब तुमने 20 रुपीज दिया, तुमने बोला जूस देने के लिए, तो चैनल का रिस्पॉन्स बदल गया कि सेम रहा? बदल गया सर। बदल गया। फिर आपने दिया 100 रुपीज कि मुझे स्प्राइट का एक बड़ा बोतल दे दीजिए, तो फिर से रिस्पॉन्स बदल गया रे बेटू? यस सर। तो चैनल के रिस्पॉन्स के कारण आउटपुट हर बार चेंज हो रहा है बेटू, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो आउटपुट का वाई लिखूं बेटू? यस सर। तो अब मैं आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटू? आपके पास कितना पैसा है और दुकानदार के पास क्या सामान है मांग रहे यस हैं, सर। मानते हैं बेटू? तो यस मैं सर। क्या लिख सकता हूं, वाई आउटपुट, जो फंक्शन होगा वो क्या, इसके और इसके एच एक्स पे, मानते हैं इस बात यस को? यस सर। ओके। अच्छा, आपको वो जल्दी मिलेगा लेट मिलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, थोड़ा बताओ। दुकान पे तुम जाते हो सर और तुमको दुकानदार। तुरंत मिलेगा, वो मिलेगा कि कितना बड़ा क्यू है ना, यस या सर। आपके पहले कौन है क्या है ना? तो वो जो चीजें हैं जो और भी चिल्ला रहा है बंदे, वो है क्या है बेटू? नॉइज। नॉइज। क्लियर है बेटू? यस सर। यहां तक क्लियर? दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नहीं। अब एक दुकान ऐसा है, और एक दुकान सिर्फ और सिर्फ, कुछ दुकान ऐसे होते हैं, कभी मम्मी का हेल्प करने के लिए डेयरी में गए हो? यस सर। तो आप सब में से मानते हो, सबको ही एक बात बताना कि आपके घर में फिक्स एक चीज फिक्स होती है, हर दिन मॉर्निंग में 1 kg मिल्क लेना है या 2 kg मिल्क लेना है। मैं झूठ बोल रहा हूं हार्दिक? नो सर। यानी आपका रिस्पॉन्स हमेशा क्या है बेटू? कांस्टेंट है ना? यस सर। तो उस कंडीशन में यानी आपका चैनल जो है डेयरी वाला एक ही सामान देगा डेली, वो क्या देगा बेटू? सर कहते मिल्क। मिल्क देगा, देगा कि नहीं देगा? यस सर। यानी आपका एच क्या है बेटू? फिक्स्ड। फिक्स्ड, कांस्टेंट। लिख लूं बेटू? यस सर। सो मैं अब इक्वेशन क्या लिखूं बेटू? एच एक्स प्लस नॉइज था, एच एक्स क्यों था? वैलिड था, इसलिए उसको Yes, sir. वैलिड था, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वायरलेस। क्योंकि वायरलेस में क्या होता है बेटा? चैनल कांस्टेंट नहीं होता, तो वो वैलिड हो सकता है, कभी बारिश आ सकती है तो पड़ सकता है। कोई मान लो Yes. देखो तुम्हारे पास टावर, तुम्हारे यहाँ घर पे टावर लगी हुई है आसपास कहीं? टावर Yes, sir. बेस स्टेशन देखा है टावर? या अपना तुम यहाँ तो रहे हो ना हॉस्टल में? यस सर। तो कभी कभी आपने देखा है कि जो अपने ये अपने बेस गेट नंबर 1 पे जो टावर है वो आपको दिखता भी है, कभी नहीं भी दिखता है, ऐसा होता है? कभी कभी आपको दिखता भी होगा, जब आप नजदीक होते हैं तो दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता, है ना? यस सर। तो ये क्या होगा? आप यदि हॉस्टल नंबर किस में रहते थे तुम? विद्यांचल। विंध्याचल में? यस सर। किस हॉस्टल में रहते थे तुम? विद्यांचल सर। विंध्याचल में। लेकिन विंध्याचल के पास तो कोई, हाँ, एक टावर है, तो वो तुम्हारे तो लाइन ऑफ साइट बन रहा होगा, लेकिन तुम बीसी जंक्शन पे आए होगे तो हो सकता है कभी पेड़ से टकरा के, कभी बिल्डिंग से टकरा के, कभी बारिश आ गई, कभी तूफान आ गया, यहाँ तो बर्फ भी गिरने लगती है, तो हर एक टाइम जो वो चैनल है वो चेंज हो रहा है, राइट? हो रहा है कि नहीं हो रहा है यस सर। हार्दिक? तो जब चैनल चेंज हो जाता है
यदि वेरिएबल हो जाता है उसको बोलते हैं वायरलेस सिस्टम। वायरलेस, जैसे आपने इनपुट अलग अलग इनपुट दिया, और यदि 10 रुपए का आपने कभी चिप्स खरीद लिया, कभी आप बिस्किट खरीद लिया, लेकिन इनपुट सेम है, लेकिन यदि आप डेयरी के पास जाएंगे तो हर बार वो मिल्क ही देगा बेटू, हर बार मिल्क ही देगा। देगा कि नहीं देगा? यस तो सर। चैनल रिस्पांस हमेशा कांस्टेंट होगा बेटू, मानते हैं इस बात को? यस सर। तो इन दिस कंडीशंस, कहने का मतलब है कि जब चैनल कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो जाए उसको बोलते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन समझ में आया? यस सर। सो अब तो बता सकते हो कि y इजकल टू एच एक्स प्लस नॉइज, ये r है, और y इजकल टू h कांस्टेंट है, यानी h इजकल टू 1 ले लूं, यानी x प्लस n है सिर्फ। तो ये कौन सा चैनल है और ये कौन सा चैनल? हाँ, तो ये है वायरलेस और ये है वायर्ड। याद रहेगा बेटू अब? यस सर। तो होपफुली मैंने ट्राई किया, मतलब रियल टाइम एग्जांपल लेके समझाने का। हो सकता है कि अभी भी किसी को नहीं समझ में आया, अगेन आई विल टेल, बिकॉज दिस इज द बेसिक्स। यदि बेसिक्स नहीं है तो क्या पढ़ के करेंगे आईओटी और कुछ भी मशीन लर्निंग, ये सब कहने की बातें हैं। और ऐसा नहीं है हार्दिक तुम्हें नहीं समझ में आया, बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, तुमने क्लियरली बोला, ये मुझे अच्छा लगा, राइट? क्योंकि अभी टाइम है, सीखने का टाइम है, ठीक है? ओके, सो सब कोई लिख लीजिए कि इफ द चैनल कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट then the system is wired, and if the channel coefficient is varied then the system is wireless. तो कोमल सही है बेटू, आगे चलें अब आज के एजेंडा की तरफ थोड़ा। ओह मम्मी, हाँ कोमल समझ में आया? यस सर आ गया। ओके, नाउ अब आज के बेसिक एजेंडा की तरफ। हाँ नहीं, एक चीज और बताना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडहॉक नेटवर्क्स। तो फिर मैं बता पाऊंगा कि आगे क्या है। ओके, तो एडहॉक नेटवर्क के बारे में जानते हो आप? ऑनलाइन गेमिंग खेलते थे तुम लोग अपने हॉस्टल में? जयदीप कभी हॉस्टल में खेलते थे? ओके, सो उसमें क्या करते थे थोड़ा बताओ सबको। पबजी खेलते थे सर। पबजी खेलते थे? पबजी मैंने नहीं खेला है, क्या सब मिलके खेलते हैं, 4-5 बंदे मिलके? यस सर, ऑनलाइन भी खेल सकते हैं सर, लोकली भी। तो उसमें लैन केबल लगाते थे? बोलते रहो, कोई बात नहीं, गेम खेलना इज नॉट बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, तो आप मतलब वो अपने सिस्टम पे है और आप अपने सिस्टम पे है, या मोबाइल आप उसका अपना है और आपका अपना है, इस तरह से खेलते थे, राइट? सर उसमें सर्वर जो होता था सेम सर्वर पे ज्वाइन कर लेते। ओके, वेरी गुड। सर्वर सेम होता था, और वायर्ड नेटवर्क के थ्रू खेलते थे कि वायरलेस? वायरलेस। हाँ, सो जयदीप है जी, मैं हूँ राकेश, और एक और बंदे, हम लोग सिस्टम से खेलते थे कि मोबाइल से? सर मैं तो मोबाइल से खेलता था। तो कोई ऐसा है? ठीक, कोई बात नहीं, मैं यही तो सीखने के लिए है बेटू, यही तो टाइम है सीखने का। सो JRS 3 बंदे हैं जिनके थ्रू हमें सीखना है एडहॉक नेटवर्क। तो 2 तरह के नेटवर्क होते हैं बेटा, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एंड दूसरा होता है एडहॉक। तो हम 3 आदमी गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम, और चलो चाइनीज गेम है तो उसके मैं बारे में नहीं बोलूंगा, कोई भी और गेम खेल रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं। तो जयदीप, ऐसा हो सकता है कि आपके पास मोबाइल है, तो आप पहले ए पोजीशन पे थे, मतलब चेयर पे बैठे हुए थे, अब आप मूव करके बेड पे आ गए, ये हो सकता है? मूव करते हैं फिर भी खेल सकते हैं? यस सर, पॉसिबल है सर, अगर वाईफाई की रेंज। ओके, तो यस, तो वाईफाई से कनेक्ट है तो आप मूव कर सकते हैं, वेरी गुड। तो मैं भी मूव कर रहा हूं, ये भी एस भी मूव कर रहा है, राइट? दैट मीन्स तीनों का पहले आर्किटेक्चर था ये पोजीशन, अब पोजीशन हो गया है कौन कौन थे? JRS, राइट? अब ये पोजीशन था, अब थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद जो पोजीशन हो गया है वो ऐसे हो गया, JRS। सो नेटवर्क ऐसे हो रहा है, राइट? So this is the position, okay?
नाउ वन नेटवर्क एंड देयर इज अ सेकंड नेटवर्क। यदि JRS के बीच में ये डॉटेड लाइन की जगह पे यदि ये वायर्ड लाइन होता, सॉलिड लाइन, ऐसे भी खेल सकते हैं आप, लैन के थ्रू भी खेलते हैं कुछ गेम, पता है जदीप, लैन के थ्रू भी खेलते हैं, है ना। सो थोड़ा अनम्यूट रहना, अभी सबको पता चल जाएगा कि एडहॉक नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। तो इफ द नेटवर्क इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेस, यानी अभी ये तो वाईफाई ले रहा है पीछे से, जो भी ले रहा है, राइट, बट ये अपने आप में ये सब जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वायरलेसली कर रहे हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ रही है, इनको वायर की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है एडहॉक नेटवर्क का, उसको बोलते हैं जदीप रिकॉन्फ़िगरेबल। रिकॉन्फ़िगरेबल मतलब क्या होता है कि द पोजीशन ऑफ दिस करेंटली इज दिस, आफ्टर सर्टेन टाइम्स द पोजीशन इज दिस, और फिर सर्टेन टाइम्स के बाद फिर भी चेंज करने, स्टिल यू आर एबल टू मेंटेन द नेटवर्क। करण समझ में आ रहा है? करण शर्मा सर थोड़ा सा नहीं आ रहा, एक बार समझने की फिर कोशिश से, करें। हाँ, तो एकदम पूछने का। देखिए बेटू, यदि मैं ABC है, थोड़ा मैं इजी ले लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहता JRS वाला, ABC है, और आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वायर्ड है बेटू, वायर्ड है, ठीक है, वायर्ड है, दोनों मतलब बाय डायरेक्शन होगा, बाय डायरेक्शन ले लिया। अब यदि इसको रिकॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटू, आप बता दीजिए कि आपको वायर भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब मैं तुम यहां आ जाओ, B वाला यहां आ जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, A, B और C। तो पहले वायर, तुम्हारे पास वायर इतना ही बड़ा है, तो क्या मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूं? पहले तो ये बता दो, यदि वायर का लेंथ R मीटर है, इतना ही है, तो कर सकते हैं क्या बेटू? करण नहीं, मतलब उसको नहीं, आगे ये बड़ा हो गया तो नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस कर रहा है। तो अब मैं बड़ा वायर लिया, फिर कनेक्ट कर दिया, तो हो जाएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? वायर की। वायर की। इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी आपको लैन केबल की जरूरत पड़े, आपको राउटर की जरूरत पड़े, मतलब कुछ चीजें नई जरूरत पड़े, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। करण समझ में आ रहा है? हाँ सर। या बीच में मैं स्विच जोड़ दूं एक, और उससे फिर कनेक्ट करने लगूं बहुत चीजों को, तो भी उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड। बट करण ऐसा हो जाए A, B एंड C अलग अलग जगह पे था, बट वायरलेसली मैं दूसरे जगह पे ये डॉट 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 वायरलेसली कनेक्टेड है। अब A यहां आ गया, B यहां आ गया, मुझे वायरलेसली कनेक्टेड कर सकता हूं मैं, और C को भी चेंज कर सकता हूं, तो C चेंज हो गया। तो रिकॉन्फ़िगरेबल किसमें इजी है बेटू? रिकॉन्फ़िगरेबल किसमें कर सकते हैं? रिकॉन्फ़िगर अपने आप, कभी बेड पे चले जाओ, कभी उस टीवी के सामने चले जाओ, कभी खाना खाने के सामने भी गेम खेलते रहो, किसमें कर सकते हैं? वायरलेस में इजी है सर। ये वायरलेस में, वायरलेस। और ये कब हो सकता है? जब आपको कोई राउटर, कोई स्विच नहीं लगाना पड़े, यानी इसको क्या बोलेंगे बेटू? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नहीं जो बनाने के लिए यूज करे, लेस, लिख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़े। एंड दूसरा क्या पॉइंट बताया मैंने? रिकॉन्फ़िगरेशन। रिकॉन्फ़िगरेशंस, गौरव समझ में आ रहा है? रिकॉन्फ़िगरेशंस, रिकॉन्फ़िगरेशन मतलब द पोजीशन इज इनिशियली हियर दिस, नाउ पोजीशन इज दिस, राइट। सो सब कोई कंक्लूजन लिख लीजिए प्लीज। मिनल समझ में आ रहा है बेटू? Yes, sir. So ad hoc network can be possible only when, लिख लीजिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क, पहला। दूसरा, रिकॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, रिकॉन्फ़िगरेशन विदाउट एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हमेशा याद रखिए, पूरे लाइफ में यदि आप ब्लूटूथ से कोई दो मोबाइल कनेक्ट करते हैं, राइट, एक दूसरे से कनेक्ट करके भी आप यदि कोई ट्रांसफर करते हैं डाटा, वो डाटा वायर नेटवर्क नहीं है बेटू, वो एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक नेटवर्क है। तो प्लीज होपफुली
हाँ बोलो बोलो। सर जैसे हम सेम से कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल के थ्रू, सर वो भी तो फिर मतलब हाँ नहीं, यही हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेरी गुड। तो हाँ मैं बताने ही वाला था अभी, अच्छा किया तूने पूछ लिया। तो क्या हो रहा है बिट्टू, आपका ये जो मोबाइल है, आपका ये मोबाइल है, और आप जब भी इधर से इधर मूव कर रहे हैं और इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये है आपका बेस स्टेशन। क्योंकि ध्यान से देखना, ये यहाँ से आप अपलिंक और ये डाउनलिंक चल रहा है बेटू। यस सर। ये अपलिंक चल रहा है, ये डाउनलिंक चल रहा है। मान लो ये तुम बहुत दूर चले जाओगे, तो इस पे तुम मतलब तुम इससे क्या होगा, जैसे कि तुम बाउंड्री एरिया पे आ गए, बाउंड्री एरिया ऑफ द बेस स्टेशन, तो आप सिग्नल ही रिसीव नहीं कर पाओगे। और क्योंकि Yes, आप sir. इस पे डिपेंड कर रहे हो बेस स्टेशन। और बेस स्टेशन का पता है, बेस स्टेशन के पीछे क्या लगा हुआ था, पता है आपको क्या होता है लगा हुआ? आप लोग को बता देता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर। याद रखिए, जो डेडिकेटेड ऑप्टिकल फाइबर लिंक यहाँ पे माइक्रोवेव लिंक और फाइबर लिंक डेडिकेटेड वायरलेसली जुड़ा रहा, सॉरी वायरली जोड़ा रहता है बेटा, वायर्ड, राइट। अब तुम पूछोगे सेम, वाईफाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है या इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, क्या है? सर उसमें भी तो हमें मॉडेम तो चाहिए होगा। हाँ मॉडेम, जो अपना वाईफाई है ना बेटू, वाईफाई वाईफाई वो पीछे भी उसमें RJ45 केबल के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा हुआ है। तो कभी बोलिएगा कि वाईफाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है? नो, एडहॉक नेटवर्क वाईफाई नहीं बना सकता कभी, समझ में Yes, आ sir. रहा है? Yes, कभी नहीं sir. बना सकता, बिकॉज पीछे में जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है बेटा? वायर्ड केबल बेटू, वायर्ड केबल। तो जहां भी वायर्ड केबल होगा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस हो गया, तो एडहॉक नेटवर्क नहीं बनेगा। सर तो फिर एडहॉक तो वो वाला होगा ना जो WLAN होगा, मतलब वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, जो अपने में जैसे ब्लूटूथ एक दूसरे से कनेक्ट करके बना ले, है ना, इंडिपेंडेंट वायरलेस जैसे वाईफाई से आप सबको वाईफाई ले रहा है, तो पीछे वाला तो कनेक्टेड है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस। बट ये दोनों, ये अपने में एक दूसरे से कम्युनिकेशन, गेम खेलते हो, वो बना सकते हो, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इसमें सर कोई भी एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए सर। नहीं, कोई भी एक्सटर्नल नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा लाइफ में कि यदि आप अपने में बना पा रहे हैं और यदि आपने कोई पीछे से ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। जैसे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस कर जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली हो ही नहीं पाएगा, है ना? क्लियर? ओके, so this is the ad hoc networks and the difference। तो मैंने क्लियरली आपको बता दिया। कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जहां पे आपको वायर कोई उस डिवाइस में लगा हुआ नजर आए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नहीं हो सकता। जहां पे कोई स्विच लग जाए या कुछ एडिशनल लग जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नहीं हो सकता। यदि तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप किसी को बता सकते हो कि ब्लूटूथ से मैं 2 बंदे 3 बंदे कनेक्ट होके कोई गेम खेलता हूँ, या आप वाईफाई हॉट मतलब किसी हॉटस्पॉट से सब जुड़े हुए हैं, लेकिन हॉटस्पॉट जो है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। आप अपने में 3 बंदे कोई अपना रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसको एड हॉक नेटवर्क। और सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जितने भी सेंसर नेटवर्क हैं, जैसे कोई एक मान लो एग्रीकल्चर लैंड है, राइट? तो देखना ध्यान से, ये सारे सेंसर नेटवर्क हैं, S1 S2 S3 S4, ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं वायरलेसली, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसमें से जो क्लस्टर हेड होगा ना, क्लस्टर हेड वो जुड़ा रहेगा GSM मॉड्यूल से, जिगबी से, बहुत सारे मतलब टेक्निक से। बट जब ये कम्युनिकेट हो रहा है उस समय वो एडहॉक है, और दे कैन मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट? तो ये मोबिलिटी हो, रिकॉन्फ़िगरेशन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं हो, डन इन क्लियरली एक लाइन में। आप सिंपल आपको बताना है क्या कहती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिकॉन्फ़िगरेबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेस इज एडहॉक। क्लियर? ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क हो जाएगा। क्लियर जदीप? यस सर, यस सर। ओके, सो होपफुली मेघा समझ में आया बेटू? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट, आपको नेटवर्किंग का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ओके, सो हम आज के लास्ट एजेंडा की तरफ चलते हैं, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं अब पहले बनाता हूं और आप लोग अपने नोटबुक में पूरा क्लियरली लिख लीजिए। तो मैं ट्रांसमीटर ब्लॉक को थोड़ा छोटा बनाऊंगा, क्योंकि मैं कल बना दिया था, तो मुझे थोड़ा सा जगह
कम है तो मैं पूरा एक साथ मैं कर लेता हूँ पहले ट्रांसमीटर रिसीवर एंड सॉरी चैनल एंड रिसीवर। सो ट्रांसमीटर चैनल ये है बुकिस नॉलेज जो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन वो भी जरूरत है सो बट ठीक है। सो हेयर इज अ सेंसर यूनिट। सो मैंने क्या किया था कल, क्या लिया था कोई बताओ मुझे मिताली? सेंसर के बाद क्या आया था? सेंसर यूनिट, सेंसर के बाद क्या करते थे हम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो कुछ पहले शायद जयदीप ने पूछा कि जब 2 सिम हम करते मतलब 2 फोन में शेयर करते हैं डेटा, मतलब Yes. जैसे अगर मुझे ट्रांसफर करना है अपना सारा डेटा एक फोन से दूसरे फोन में, Yes. तो वो एडहॉक नहीं होगा क्या? एडहॉक बिकॉज उसमें आपको कोई एडिशनल वायर की जरूरत नहीं पड़ी ना बेटू। तो वो है ना एडहॉक? ठीक है। हाँ, यदि मैं वही बोल रहा हूँ कि उसने पूछा क्या कि बेस स्टेशन जो पूछा उसने कि बेस स्टेशन के साथ जो हम करते हैं, तो आप पूरा डिपेंड कर रहे हैं क्या आप अपने में 4 मोबाइल यदि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिकॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आप एडहॉक हैं। बट यदि आप बेस स्टेशन की बात करेंगे तो वो एडहॉक नहीं है बेटू। हाँ, जैसे वाईफाई है, वाईफाई आप हम 3 बंदे आप सब कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, कभी टीवी के पास जाके, कभी बेड के पास, कभी खाना खाते हुए व्हाट्सएप जैसे करते हैं, और एक दूसरे को जब भी आप देखना आप ध्यान से, यदि आप कोई डाटा भेजती हो ना, ध्यान से देखना, यदि कोई डाटा कोई भेजते हो एक टेक्नोलॉजी के साथ, तो व्हाट्सएप भेजती हो, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप आपका डायरेक्टली चला जाता है उस यूजर के पास? नहीं, वो पहले क्या जाता है, पहले आप वाईफाई पॉइंट पे जाता है जो एडेप्टर है। वाईफाई क्या है? बेसिकली एडेप्टर है। पता है क्या कौन सा एडेप्टर है? एडेप्टर क्या करता है? कन्वर्ट करता है वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो एडेप्टर वाईफाई में क्या लगा है? पीछे क्या लगा हुआ है? मेघा किसने, मिनल किसने पूछा था? प्लीज सगुन ध्यान से देखना। तो आपका वाईफाई में क्या लगा हुआ है? पीछे वायर लगा हुआ है ना बेटू? यस सर। लगा हुआ है। अब ये वायर लगा हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेस तो है नहीं वो, क्योंकि वायर लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, किसी से वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो किसी को आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, तो अब डायरेक्टली उस बंदे के पास चला जाता है? नहीं, पहले आपके मोबाइल से जाता है एडेप्टर के पास, एडेप्टर सर्वर पे जुड़ा हुआ है, सर्वर जहां आपका लोकेशन है उस सर्वर पे जाएगा, फिर वहां से ट्रांसमिट करेगा। तो ये पूरा नेटवर्क वाईफाई से डिपेंडेंट हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि ब्लूटूथ है, कोई अलग अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, राइट? कोई भी अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़े, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़े, हम अपने आप ट्रांसफर कर सकें। जैसे आजकल एक आया है, जैसे कोई तुम फोन, जैसे तुमने बताया अभी, जैसे तुम नया फोन खरीदती हो, तो उसमें एक ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं और डाटा ट्रांसफर कर देते हैं सिंपली, बिना कोई नेटवर्क नहीं होगा फिर भी ट्रांसफर हो जाएगा। देखा है सगुन? यस सर। हाँ, तो उसमें आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत नहीं पड़ी, तो उस तरह के नेटवर्क को एडॉक बोलेंगे, राइट? हाँ, तो दिस इज द ट्रांसमीटर यूनिट। ट्रांसमीटर यूनिट में सेंसर के बाद क्या हो रहा था बेटू? क्या था सेंसर के बाद? क्या था मिताली? सर प्रोसेसिंग देन यदि बहुत बहुत जगह से आया है तो क्लस्टर हेड, नहीं तो डायरेक्टली, एंड क्लस्टर हेड गोज टू कहां पे बेटू? गेटवे एंड गेटवे गोज टू प्रॉक्सी सर्वर। लिख लीजिए, प्रॉक्सी सर्वर। ओके, नाउ गेटवे गोज टू प्रॉक्सी सर्वर, और प्रॉक्सी सर्वर से जो जुड़ा रहेगा, सर्वर से जो जुड़ा रहेगा, वो लिख लीजिए आप सब कोई, इंटरनेट। राइट? और इंटरनेट जो इंटरफेस होता है वो किससे होता है? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जो तीनों चीजें टेक्नोलॉजी में बताऊंगा। सो लिख लीजिए, दिस इज वेव ऑफ सॉकेट। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वेव ऑफ सॉकेट क्या होता है। वेव ऑफ सॉकेट वो जुड़ा रहता है फॉग कंप्यूटिंग से। लिख लीजिए, फॉग कंप्यूटिंग, एंड ये जुड़ा रहता है क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको कभी क्लाउड एंड फॉग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो दिस इज द और ये इंटरफेस है, इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट है बेटू, और ये है इंटरफेस। सो प्लीज आर्किटेक्चर ड्रॉ कर लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉक्सी सर्वर के पीछे लगा हुआ है अपना लैन वैन, और रिसीवर इन पे जो भी एनालिसिस करते हैं, डायरेक्ट एनालिसिस करोगे
तो जरूरत पड़ती है एक्चुएटर की, एक्चुएटर। और यदि नहीं प्रोग्रामिंग वाला है हार्डवेयर एनालिसिस तो एक्चुएटर्स, नहीं यदि सॉफ्टवेयर है एप्स है तो उसको हम एनालिसिस करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ एनालिसिस। और एनालिसिस के लिए हमें चाहिए होता है प्रोटोकॉल, एनालिसिस के लिए हमें चाहिए होता है प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले आपको पहले लिखवा देता हूं सबको, प्लीज पहले लीजिए सेंसर, प्लीज अपना अपना उसमें बनाइए ट्रांसमीटर यूनिट सबसे पहले सेंसर। सेंसर, फिर क्लस्टरिंग, connected with the gateway. Gateway is connected with the proxy server. Server is connected with the internet. Internet is connected with the interface with the web socket. Fog computing and cloud computing. And receiver side जो है वो है बेटा actuator and analysis. और एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटोकॉल, राइट। तो यदि किसी को दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ। पहले गेटवे ले लीजिए। Gateway is connected with the server. Server is connected with the LAN, WAN. Server जो है कनेक्टेड होगा बाय डायरेक्शन से इंटरनेट से, और इंटरनेट इज इंटरफेस विथ दिस मॉड्यूल्स, जिसको मैंने अभी बताया आपको। वेब ऑफ सॉकेट पहले होता है वेब ऑफ सॉकेट, then fog computing, then cloud, एंड ये क्लाउड जो जाएगा इधर रिसीवर साइड में एनालिसिस के पास। चलिए पहले चैनल लिख लीजिए। गेटवे से जाएगा सर्वर, जिसको प्रॉक्सी सर्वर लिखते हैं, लिख लीजिए प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर एंड सर्वर में क्या डिफरेंस है डिस्कस करेंगे कभी। फिर ये इस साइड चला जाता है लैन वैन जो भी है कनेक्टेड है, अदरवाइज ये जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट में इंटरनेट इंटरफेस विद द वेब ऑफ सॉकेट, फॉग कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। और मैं भेज भी दूंगा, एक स्नैपशॉट भी भेज दूंगा, आज ट्राई करूंगा